Everyone. Thank you everyone for your patience and welcome to the book launch of Udan. It is a book of inspirational poems written by a dear friend of mine, Padamjeet Sherawat, who I've known for many years as a fellow commentator, as a fellow sports enthusiast. We couldn't have asked for a better day to really launch this book. It's a nice winter afternoon here in New Delhi, and I think the venue that it itself puts Padamjeet in elite company. I've attended a few book launches here of Dr. Shashi Tharoor, Dr. Pranab Mukherjee, Rahul Dravid, so already puts him into elite company of intellectuals, so that he's found a beautiful day and a beautiful afternoon to do this. Also, it's a privilege to welcome all of you, including someone like a legend in Mr. Kapil Dev, and though he remains the ideal and the most inspirational all-rounder, but I must say that in a no comparison, but in a small sense, my friend Paddy is also quite an all-rounder. You know, he was a cricketer, played first-class cricket. After that, is now a musician, a singer, a writer with the launch of this book, and of course, as you know, a very popular commentator. So, lovely to have all of you join us this afternoon. Some of his illustrious friends could not join us because of prior commitment, but they send us their good wishes. I'm going to have a few videos of some of those commentators talk about Padamjeet, their relationship with him, as well as what they think of his writing, as well as motivational skill. And I think no better person to start off with than Navjot Singh Sidhu. I think someone who he must have templated his own personality on when it comes to motivational speaking. Could we hear Sherry Paji's, Navjot Singh Sidhu's video, please? प्यारे दोस्तों, जैसे नई सुबह नई तरंग नई उमंग के साथ आती है, वैसे ही नई ताजगी के साथ पैडी, मेरा छोटा भाई, उसकी ये किताब उड़ान ऊपर जाने वाली है। गुरु, हर तरह से उसे पंख लगने वाले हैं। सूरजमुखी का पौधा सूर्य की संगत में फलता फूलता है, वैसे ही कपिल पाजी की संगत इस किताब और इसके ज्ञान को फैलाव में बहुत मदद करेगी। हमारे लिए तो वो फादरली फिगर है, पैरी पेनाप्पा जी। अब आइए मुद्दे पे। देखिए, पैडी वो इंसान है जो जद्दोजहद और संघर्ष को गहना बना के फला फूला है, रगड़े खा के ये मुकाम जो है उसने हासिल किया है। सच पूछिए तो पाजी वहाँ इसलिए हैं क्योंकि वो मेरिट को हमेशा ऑनर करते हैं। भैया, जिसका संघर्ष गहना होगा, कुदरत भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। हर्षा भोगले के बाद ये दूसरा बंदा देखा है मैंने, ये हिंदी का हर्षा भोगले। पैडी ने एक विलक्षण पहचान बना, चाहे वो मोटिवेशनल हो। मैंने कभी किसी को नहीं देखा मोटिवेशन करते हुए गीत गा के, संगीत की लय में। फिर जब वो कमेंट्री करता है तो भैया, चाहे कबड्डी हो, चाहे खो खो हो, चाहे हॉकी हो, चाहे विमेंस क्रिकेट हो, चाहे वो आईपीएल हो, एक ही तरंग है। और एक स्पेशलिस्ट की तरह वो कमेंट्री करता है। और ये जो उसने पहचान बनाई है ना, ये जो हुनर उसने बिखेरा है, ये एक आम सड़क पे चलते हुए आदमी, गली में, मोहल्ले में, उसे प्रेरणा देता है कि वो अपने अरमानों को, अपनी तमन्नाओं को पंख लगाए। ये कविताएं किसी किताब से निकाली हुई नहीं है, ये पैडी की रूहानी आत्मा से निकली हुई, कल कल बहते झरने की तरह बनी हुई कविताएं हैं और मोटिवेशनल कोट्स हैं। वक्त आ गया है कि पैडी की हौसला अफजाई की जाए कि दो ही चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं। फूल से पानी निकालो, कम होता है। तिजोरी से पैसे निकालो, कम होंगे। लेकिन दो चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं, प्यार और ज्ञान। बांटो गुरु, दिल खोल के बांटो। शाहजहाँ गुरु, बगैर बादल।
As inspirational as always, Mr. Navjot Singh Sidhu unfortunately could not make it, but I think this video in itself is a testament to all the hard work that Paddy has put over the years. Next up, another person that Paddy shared a very close relationship. पदम, मैं वहाँ होना चाहता था पर फिलहाल दुबई में हूँ और यहाँ से ढेर सारी शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। आपकी उड़ान आज लॉन्च हो रही है। आई एम सो हैप्पी। वहाँ एक बार माँ वाली पोएम ज़रूर पढ़ के सुनाना, वो मेरी फेवरेट है। यू हैव ऑल माई बेस्ट विशेज माई फ्रेंड। कीप रॉकिंग। गुड लक टू उड़ान। Maybe a little later that poem is going to come. Harbhajan Singh also sends his wishes. उड़ान एक ऐसी मोटिवेशनल बुक और जिसमें कुछ ऐसे कोट्स जो आपके दिल को छू जाएंगे। पदम भाई शेरावत, जिनको मैं कई सालों से जानता हूं, पहले ये क्रिकेट खेलते थे और अब मेरे साथ कमेंट्री करते हैं। बहुत कुछ सीखता हूं इनसे जब इनसे मिलता हूं। तो ये इनकी बुक जो अभी लॉन्च हो रही है आज, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पदम भाई आपको और आपके सारे परिवार को और हम सब साथियों को। बहुत पढ़ने का मजा आएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वहाँ कपिल पाजी आए हैं, बहुत बहुत पाजी आपके चरणों में प्रणाम। और आए हुए सारे मेहमानों को, दोस्तों को बहुत बहुत प्यार सत्कार। और जिस तरह ये किताब का नाम है उड़ान, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किताब में जो चीज़ें लिखी हैं वो उड़ान बन के ही आपके दिल को छू जाएंगी। बहुत बहुत प्यार, बहुत सत्कार। टेक केयर। क्या बात है। हरभजन सिंह कहते हैं आपसे रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब इतने सारे दोस्त हैं इनके, इतने सेलिब्रिटीज हैं, तो सबके वीडियो हम अलग अलग नहीं चला पाएंगे, लेकिन एक कंपाइलेशन है। प्लीज सबकी बेस्ट विशेस सुनना चाहेंगे। राइट, ये जो पदमजीत है हमारे, बहुत ही यूनिक बंदा है। क्रिकेट में होता है ऑलराउंडर, वैसे ये ट्रू ऑलराउंडर है। अच्छी कमेंट्री करते हैं, गाते भी बहुत बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने अपने ऑलराउंड जो एबिलिटी है उसमें एक और तार जोड़ा है। उड़ान मोटिवेशनल पोएम्स, जैसे उनकी कमेंट्री होती है मोटिवेशन, उस तरह के ये कलेक्शन ऑफ मोटिवेशनल पोएम्स एंड कोट्स है। हिज लेटेस्ट boundary called Udan. So I want to wish Padam all the best. We call him Paddy. Let's hope your Udan, like its name, soars to greater heights. All the best, Paddy. Take care. Hey guys, hope you all are doing well. A very dear friend of mine, Mr. Padamjeet Sherawat, is releasing his new book, Udan. Udan is a series of motivational poems and quotes. He's someone who is a very renowned name in the cricketing fraternity, especially as far as broadcasting is concerned, someone who's always looked out for me. Padamji, wishing you the very best of luck, and I know that this book is going to be a roaring success. Hello everyone, Udan. Udan is an original motivational poems and quotes by Padamjeet Sherawat. I am pretty sure it will be a great read. I am personally looking forward to it. Good luck buddy, go well, do well. I am sure Udan will fly really high. पैडी भाई, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट आपकी बुक लॉन्च के लिए। आई एम श्योर जितने आपके चाहने वाले हैं, जो लिसनर्स रहे हैं, जो पढ़ेंगे इस बुक को, दे विल रियली एंजॉय योर पेप टॉक, आपकी मोटिवेशनल टॉक, आपकी ओरिजिनल लाइंस, पोएम्स, जो कि फैंस को बहुत पसंद आती हैं। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप इट्स अ ग्रेट इवेंट एंड आई होप द बुक इज अ बेस्ट सेलर। बहुत सारा प्यार, बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते, मैं हूं संग्राम सिंह। तो पदम भाई, आप कमाल हो यार। आपकी जो गाने हैं, आपकी जो पोइम है, आपकी जो कविता है, वो बहुत इंस्पायरिंग है। और अब आप एक बुक लेके आ रहे हो उड़ान। मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ आपकी बुक का, क्योंकि आप बहुत मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, सारी आपकी पोइम, बाकी चीजें वो सब करते हो। और आप तो जानते हो कि मेरा जोनर वही है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी बुक लॉन्च के लिए। My dear friend Paddy, huge congratulations on the launch of your book. Now that I have this opportunity, let me say this. You have an incredible gift of creating magic with words, whether through quotes, your one-liners, and that amazing commentary. You entertain and inspire us all. I hope that your journey continues to soar
entertain, and inspire everyone around you. Wishing you the very best. Once again, my friend, big congratulations. देखिए ये शायद जो मैसेजेस हैं, मुझे भी इसके आइडिया नहीं था, लेकिन दोस्त यार बहुत होते हैं आपके, जब इतने अहम लम्हे में इस तरह के मैसेजेस आते हैं तो ज़रूर बताता है कि किस तरह के शख्स भी हैं पैडी, इनके साथ लगातार काम करते हैं, पर आज उनके जीवन का इतना बड़ा दिन है। सबके इस तरह से मैसेजेस आना आई थिंक दर्शाता है कि एज अ प्रोफेशनल भी वो किस तरह से काम करते हैं। आपको इस किताब की थोड़ी जेनेसिस समझनी पड़ेगी। मोटिवेशनल किताब है और एक स्पोर्ट्स पर्सन से आई है, क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा मोटिवेशन या सबसे ज़्यादा अंडर प्रेशर एक शायद खिलाड़ी ही होता है। एक खिलाड़ी के लिए इस तरह की किताब लिखना, क्योंकि वो उस दबाव से शायद गुजर चुका है, शायद उसको पता है एक मोटिवेशन की अहमियत क्या होती है, क्योंकि अंत में तो उसको मैजिक मोमेंट्स क्रिएट करने होते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप है मैजिक मोमेंट्स और मोटिवेशन के बीच। अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो मैजिक मोमेंट्स क्रिएट करेंगे, मैजिक मोमेंट्स देखकर आप मोटिवेट रहेंगे। तो हमने क्या किया है, कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको देखकर शायद पैडी मोटिवेट हुए, कई ऐसे होंगे जिन्होंने इनकी शायद कविताएं पढ़ के मोटिवेट होकर मैजिक मोमेंट्स क्रिएट किए। कुछ मैजिक मोमेंट्स सुन लेते हैं, फिर हमारा जो पैनल है उस पर हम चर्चा करेंगे। द सलीम खान का मैजिक मोमेंट क्या होगा? अगर आप कैमरे में देखिए, ये आपका कैमरा है सर, आप कह सके कि मेरी जिंदगी का मैजिक मोमेंट ये है, एक ज़माने में मैंने सलीम दुर्रानी को क्रिकेट खेलते हुए देखा, जब मेरा भी क्रिकेट पीक पे था, और मैंने देखा कि ऐसा तो नहीं खेल सकूंगा कभी, और मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। Well, the magic moment definitely would be the moment where my brother's coach has identified the talent in me, I would say, because of that I could able to sort of play for India, get into this sport in the very first at the beginning. So I think that would be my magic moment. My magic moment is I born. That was the magic moment. If I have not born, I wouldn't have been here. So I think people forget that the biggest moment in your life is you're born in this world. And उससे बड़ा मैजिक मोमेंट हो नहीं सकता। कुछ लोग परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि हम पैदा हुए यही सबसे बड़ा मैजिक है। मेरी ज़िंदगी का मैजिक मोमेंट था वो हैट्रिक। आई थिंक अगर वो हैट्रिक नहीं हुई होती तो फिर हरभजन सिंह का कोई वजूद नहीं होता, क्योंकि उस मैच से पहले और उस मैच के इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही थी वो सही संकेत नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि मुझे क्रिकेट छोड़ के अब निकलना पड़ेगा, बट अगर वो हैट्रिक नहीं हुई होती तो आज मैं कहाँ होता, क्या कर रहा होता, मुझे भी नहीं पता है। बट उसकी रज़ा थी कि मैं क्रिकेट खेलूं, और उसने मुझे इस पूरे नाम से और हर चीज़ से नवाजा है। तो बस मैं शुक्रिया अदा लाख बार करूं, करोड़ बार करूं, वो कम होगा, क्योंकि वो मेरा मोमेंट अगर नहीं आया होता तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ होता। वो मैजिक मोमेंट फॉर मी वाज टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू अचीव दैट हैट्रिक। मेरा लाइफ का मैजिक मोमेंट है इज द फर्स्ट टाइम आई हेल्ड माय डॉटर, सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट मैजिकल मोमेंट इन माय लाइफ। मेरा मैजिक मोमेंट मैं बोलूँगा, अभी मुझे सिर्फ पर्सनली याद नहीं है, मेरी ग्रैंडमदर हमेशा बोलते थे, अभी शी इज नो मोर, तो मेरे लिए सबसे बड़ा मैजिक मोमेंट आई थिंक सर्वाइविंग। मेरा बचपन में एक छोटा सा नहीं बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तो मामा पापा बोलते कि वो ऑपरेशन के टाइम पे डॉक्टर ने बोला था ये तो आपका 4th चाइल्ड है, तो आप क्यों इतना पैसा खर्चा करके इसको यू वांट रिकवर। डॉक्टर ने बोला था कि उतना सीरियस था, बट पापा ने बोला नहीं, यही हमारा ख्याल रखेंगे, और वही हुआ, भगवान का शुक्र। आई थिंक द मैजिक मोमेंट ग्रैंड मदर जब भी मेरे से मिस्चीफ या कुछ शैतानपन करता था तो ग्रैंडमा मुझे बुला के बोलता था तेरे पापा ने ना बहुत खर्चा करके तुझे वापस दुनिया में लेके आए, तो आप कुछ कर लेना अपनी फैमिली के लिए। तो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मैजिक मोमेंट फॉर मी। इज द मैजिकल मोमेंट जब आप अपने हाथ में अपने बच्चे को पकड़ते हो। आई मीन आई हैव हैड 2 सच अपॉर्चुनिटीज, 2 बेटियां मेरी। आई थिंक इससे बड़ा मैजिक कुछ नहीं है एक्चुअली, हैव होल्डिंग योर बेबी इन योर हैंड, और दैट इज मैजिकल इवन टुडे। मेरी जिंदगी का मैजिक मोमेंट सरदार भगवंत सिंह सिद्धू के घर में पैदा होना मेरा मैजिक मोमेंट। जिस दिन मैं सरदार भगवंत सिंह सिद्धू के घर पैदा हुआ, मेरी जिंदगी उसी दिन बदल गई दोस्त। मेरा बाप मेरे लिए आज भी सब कुछ है।
मेरी जिंदगी उसकी देन है दोस्त, और उसने मुझे ऐसा तराशा है, ऐसा तराशा, हार ही नहीं सकता हूं, हार के भी जीत जाता हूं। मेरी हार में मेरी बहुत बड़ी जीत है। कारण संस्कार, 2 लाइनों में जिंदगी समेट दी। When in doubt, walk straight, walk the path of truth, never compromise on moral values. बहुत ही शानदार मैजिक मोमेंट्स, बट आई थिंक नंबर 1 एज ऑलवेज कपिल पाजी हिट्स इट आउट ऑफ द पार्क। सिंपल स्ट्रेट मैजिक मोमेंट है द डे ही अराइव्ड। एक्चुअली इनके लिए नहीं, हम सबके लिए वो मैजिक मोमेंट था। वो तो हमें कई साल बाद पता चला कि वो मैजिक मोमेंट हुआ है। इन्होंने हमें इतने मैजिकल मोमेंट्स दिए ऑन द फील्ड। कपिल पाजी को मैं स्टेज पे बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले जिस शख्स का आज मैजिक मोमेंट है, पदमजीत शेरावत, प्लीज आइए। साथ साथ मैं बुलाना चाहूँगा रिचा टंडन जी को। शी इज़ द मार्केटिंग हेड ऑफ मैजिक मोमेंट्स। थैंक यू मैम फॉर सपोर्टिंग दिस इवेंट। Could I also request Kapil Paji, please, sir, if you could come on stage. Come on, a big round of applause for our guest of honor this afternoon. And last but not the least, Dr. Anurag Batra. He is the chairman and editor-in-chief of BW Business World and also the founder of Exchange for Media. तो पदमजीत, ये पहली बार किताब लिखने का आइडिया कैसे आया? गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। आइडिया, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। एक बार जरूरत ये पड़ी कि गाना लिखना था, और जिनके पास गए उन्होंने कहा बड़े पैसे मांगे, तो पैसे थे नहीं। तो हमने कहा माँ बाप ने इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, तो चलिए खुद ही लिख लेते हैं। कोशिश की, शाम को जिसको सुना उसको बड़ा पसंद आया। उस दिन मुझे वो लिखने के 400 रुपये मिले निखिल डॉक्टर साहब। तो शुरुआत वहाँ से हुई थी, और जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती गई ये समझ में आ गया कि मेरा खुद का लिखा हुआ कोट है बुक में भी, कि जिंदगी की एक ही सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है। तो रगड़ दे खुद को मेहनत से, अकड़ को दफन तू कर दे, पकड़ ऐसी बना खुद की वो अंबर भी नमन कर दे। वाह वाह, क्या तो बात। मैं सर घिसता रहा, तपता रहा, और एक और मेरा कोट बड़ा फेमस हो गया चलते चलते। कबीर भाई, मैंने लिखा कि बिना सिका भुट्टा 5 का, बिना सिका भुट्टा 5 का, सिका हुआ भुट्टा 20 का, कीमत बढ़ानी है तो जलना तो पड़ेगा। कपिल देव यूं ही कपिल देव नहीं बन गए। छाया है कोहरा छटता नहीं है, पास का तो ठीक दूर का दिखता नहीं है। छाया है कोहरा छटता नहीं है, पास का तो ठीक दूर का दिखता नहीं है। तपन पड़ेगी तब ये कोहरा हटेगा, इस कोहरे को हटाने के लिए सूरज को निकलना पड़ेगा। कीमत बढ़ानी है तो डॉक्टर साहब जलना पड़ेगा। क्या बात है। रिचा, मैजिक मोमेंट्स और पदमजीत का बहुत लंबा सफर इकट्ठे गुजरा है, तो आपके पदमजीत से इंटरेक्शन करने में वो कौन सी मैजिक मोमेंट है जो निकल के आई? बाउंसर। That's a very tough one. Actually, Paddy and as we all call him, Patamjeet Sehrawat, Magic Moments has always been, promoting music, talent, entertainment. And ये जो मैंने तीनों शब्द जो कहे हैं, I mean इसका साक्षात एग्जाम्पल हमारे सामने the tall Mr. Padamjeet Sehrawat. So इस तरह के कई moments हमारे साथ भी रहे हैं, wherein काफ़ी हमारी लड़ाई झगड़े भी रहे हैं। अगर वो भी हम गिनते रहे तो ये शाम कम पड़ जाएगी। But I think the best thing about Paddy, you just call him Paddy. ये ना यहाँ पे हम किसी एक काम में किसी प्रोजेक्ट में फंस रहे हैं, I really need your help. We have कुछ एक हमको शूट करनी है. So some people know him as a musician. Some people know him as a sports commentator. A very few of you would also know him as a very good
voiceover artist. And of course, he's a very good motivational speaker as well. So, इस तरह के कई moments रहे हैं and recent रहे हैं when, you know, I was narrating a script. अभी we have just associated ourselves with one of our hockey India League अभी चल रही है. उसमें एक team का हमने एक association किया है. We were just narrating the script to him and there were some, you know, beautiful suggestions and inputs just randomly came out of Paddy कि इसको हम ऐसा करेंगे और इसको ऐसे. And the way it just comes out of nowhere from him, exactly like a bouncer, but I mean it really चार चांद लगा देता है. So I think that's his talent. तो ये तो ईश्वर की नियामत है, एक देन है. निखिल आपने बताया, बट एक ऐसा वाक्य बताइए जो मजेदार हो और जो मैजिकल हो. इनकी एक काबिलियत है. लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, मैं एक चीज़ पूछना चाहता था, मेरे जहन में थी क्योंकि कपिल पाजी यहाँ हैं. मैं तब से सोच रहा था, पाजी आज बुलाया इसने आपको कैसे, मतलब ब्लैकमेल किया या मोटिवेट किया या रोने लगा, मतलब आप कैसे मान गए या मोटिवेट हो गए 2-3 लाइनों के बाद हैं? गुड इवनिंग. नया साल मुबारक हो आप सबको. और बुलाया 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 आगे आगे. तो इसमें क्या है, आई थिंक क्या होता है कि हमसे ज़्यादा कोई फ्री आदमी नहीं होता. ऐसा माहौल बना देते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं काम में, वो बात अलग है. शायद अभी वो कहना मुश्किल होता है. जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हो तो सबको मना करना बड़ा आसान होता है. कह देते नहीं मेरे को प्रैक्टिस करनी है, मैं नहीं आ सकता. और आज हम क्या बोले, क्या करना है, बुलाया है तो आ जाओ. तो मुझे समझ नहीं आया, मना करने के बाद भी नहीं मना कर पाया कि चलो यार साथी कोई कुछ कर रहा है. और सबसे अच्छा ये लगा कि यार कुछ लिखने वाले, आजकल लिखने वाले मिलते कहाँ हैं. आजकल लिखने वाले नहीं मिलते. आजकल तो छोटी वन लाइनर आपने टेक्स्ट करते हैं, वही लिखने वाले मिलते हैं. वहाँ भी लिखते नहीं हैं, हमारे जैसे तो बोल के ही लिख देते हैं. तो आज जो आदमी कोई आज लिखने वाला मिलता है तो उसकी आपको एक पहचान बनती है, अच्छा लगता है. तो इन्होंने बोला, डिस्पाइट ऑफ 3-4 दिन मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने कहा ये नहीं. फाइनली बोला, जिस दिन जो आदमी ये बोलते ना, जिस दिन आप टाइम दो, फिर आदमी कहता है अभी ले ले यार, तो फिर क्या टाइम है, फिर झूठ क्यों बोलना. तो फिर इन्होंने बोला कौन सा, मैंने कहा जो डेट तेरे को पसंद है. तो ये डेट इन्होंने बोली, चुपके से मैं आ गया. अच्छा लगा आके. अच्छा ये लगा, मेरे को नहीं पता था इतनी बड़ी उड़ान है ये छोटी उड़ान नहीं है, बहुत बड़ी उड़ान है. अच्छा लगा कि इतने लोगों के साथ काम किया, क्योंकि मैं तो अब काम नहीं करता, मैं तो ऐश करता हूँ. पदम से ये पूछना चाहता था. पदम पूछते कितने पैसे मांगे थे लिखने के. पहले वाले ने उसने मांगे थे. हाँ, 10,400 की इन्होंने कमाई की पहली बार. 10,000 वो बचाए, 400 अपने बनाए. तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि कोई रास्ता दे देता है कोई ना कोई दोस्त आपको, कि आप में अगर वो कशिश है, आप में वो हिम्मत है, तो फिर आदमी सब कुछ काम कर लेता है. दूसरी बात, मुझे कभी ये समझ नहीं आती कि स्ट्रगल करते हैं. क्या स्ट्रगल करते हो भाई? ये जो कर रहा है ये स्ट्रगल थोड़ा है, ये तो पैशन है. पैशन में कोई स्ट्रगल कर रहा है तो मत करो ना. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खेलते हुए बड़ा स्ट्रगल है. क्या स्ट्रगल है? साला खेलने के लिए पैदा हुए, खेलो और ऐश करो. और स्ट्रगल, ये जो वर्ड आ जाते हैं ना, कभी कभी स्ट्रगल है, बहुत परेशान होते हो. मेरे को ये समझ नहीं आता आप खेलते किसके लिए हो. सबसे बड़ी बात है कि आप गाते किसके लिए हो, आप लिखते किसके लिए हो. अपने लिए लिखते हो. और जब अपने लिए लिखते हो तो फिर स्ट्रगल कहाँ है? कहाँ है स्ट्रगल? तो शायद मैं सब बच्चों को भी कहना चाहता हूँ जब मिलता हूँ, कि स्ट्रगल किस बात का है जिसमें मजा आ रहा है, या इसको गाते हुए मजा नहीं आ रहा तो फिर छोड़ दे गाना. अगर कमेंटेटर बनते हैं और करते हुए मजा नहीं आ रहा, छोड़ दो.
हाँ, फिर दूसरा किस्सा आता है कि हम पैसा कमाने के लिए बोल रहे हैं, वो फिर अलग है। उसको स्ट्रगल कह सकते हो, पैशन को स्ट्रगल नहीं कह सकते। पैशन तो मजा है और मजा में कभी स्ट्रगल हो ही नहीं सकता। ब्यूटीफुल। निखिल, अब देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि एंकर से सवाल पूछ लो तो वापस पूछ ले, लेकिन आप मेरे सवाल का उत्तर हाँ, मैं वो कह रहा था, इनके इतने सारे इनके साथ मेरे लम्हे गुजरे हैं। इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है और शायद बहुत लोगों को पता नहीं है। जैसे आमतौर पर सब लिखते हैं, मैंने भी किताब लिखी थी, मुझे बड़ा टाइम लगा चीज़ें लिखने में, सोच कर समय लगता है। ये ऑन द स्पॉट मोटिवेशनल चीज़ें लिखते हैं। और आज मैंने सोचा था ये इनके साथ करूंगा। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैंने कहा देख भाई, मैं कहने वाला हूँ, कोई एक टॉपिक दूंगा, तेरे को लिखना है, अभी बता दूं टॉपिक? तो उसने कहा नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। उसने कहा नहीं, फिर मजा ही क्या है, जो तेरे मन में आता है, जो भी तू सोचेगा वही मुझे कहना, मैं उसी को लिख के दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे मैं वो 4 लाइनें लिख सकता हूं। तो नो चीटिंग। और मैं ये बताना चाहता हूं कि चीटिंग नहीं हो, आप में से कोई एक टॉपिक दे दे, ताकि ऐसा हो भी ना कि भाई मैंने सोचा है। आप कोई भी एक मुद्दा बताएं, उस पे पदम अभी आपको 4 लाइनें मोटिवेशनल लिख के दिखाएगा। 60 सेकंड में। हाँ बताएं, आप बताएं सबसे पहले। आप स्ट्रगल की बात हो रही है, विराट कोहली भैया। कैन वी गेट हिम अ माइक? आप बोल दीजिए, चलिए। सर्दी की धूप। भैया कैन वी गेट हिम अ माइक? आप बोल दीजिए, चलिए। सर्दी की धूप। 60 सेकंड सब चुप रहे ना, बोले अभी। लेकिन मेरा टाइम को शुरू हो रहा है। चलिए, मैं स्टॉप वॉच ऑन करता हूं। बताना जब शुरू हो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं सर। अच्छा, 60 सेकंड। हाँ, मैंने सोचा 7 सेकंड। थोड़ा मजा भी ले लें। वो तो अपना काम कर रहे हैं, हम थोड़ा चुप बैठे। आपके पास रह गए 12 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लो, पहले ही माइक उठा लिया है। सर्दी की धूप। ओए होए क्या बात, ओए होए क्या खूब, ओए होए क्या बात, ओए होए क्या खूब। एहसास भी है और गर्मी भी है ये सर्दी की धूप। क्या बात है। नाउ लेट मी गो टू मिस्टर कपिल देव। एक तो मैजिकल मोमेंट्स बताइए, जैसे आपने एक दिन बोला ये स्ट्रेस क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं, मैं बोलता हूँ स्ट्रेस है वर्ड। मैं तो देसी स्कूल में, इससे भी देसी स्कूल में गया, जिसने किताब पहली तो मुबारकबाद हिंदी में लिखी है। आजकल हिंदी में कौन लिखता है भाई? क्या बात है। आज तो अंग्रेजी का ज़माना है और जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसमें दिमाग नहीं है, ऐसा माना जाता है। मैं नहीं कह रहा, लोग सोचते हैं जो इंग्लिश जानते हैं उन्हीं के पास दिमाग है, तो अच्छा लगता है कोई ऐसा लिख देते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस जो है ये क्रिएटेड किया गया है। ये जो होते हैं ना, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं हिंदुस्तान के लिए खेलूँगा, मैं तो अपने लिए खेल रहा था। और खेलते खेलते हिंदुस्तान के लिए खेला तो बड़ा अच्छा लगा, और खेलते खेलते ये पता लगा कि लोगों को बड़ा मज़ा आया मेरा खेल देखते हुए। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? देखिए, एक चीज़ होती है कि गाना गाते हो, गाना आप अपने लिए गाते हो, और गाने से अगर आप पैसा कमाना शुरू कर दो तो वो बोलते हो ये भगवान की देन है कि आपका पैशन है गाना गाना और आपको पैसे मिल रहे हैं। हमारा पैशन है एज ए किड क्रिकेट खेलना,
और उससे पैसा मिलता है, और क्या चाहिए। पैशन से अगर आप पैसा कमा सकते हो तो गॉड इज काइंड। मैं ये नहीं कहता कि जितने भी लोग इंसान यहाँ पर बैठे हैं सब एक ज़माने में खेलना चाहते थे। जब पहली चीज माँ बाप देते हैं, आपको गेंद दे देते हैं, बल्ला देते हैं, कुछ खेलने का सामान देते हैं, लेकिन 3 साल के होते हो सब ले लेते हैं और उसके बाद एक किताब पेंसिल आपको पकड़ा देते हैं और ये नहीं बताते कि इस पढ़ाई में मजा है। पढ़ाई सिरदर्दी बना देते हो। और अगर पढ़ाई को खेल की तरह सोच लोगे तो फिर बहुत मजा है। तो मेरे को तो ये था कि मुझे क्रिकेट खेलना है यार, ये कौन पढ़ेगा, क्योंकि पढ़ते थे तो टीचर मारता था। टीचर मारता था तो कौन उस जगह जाएगा जहां पर मार पड़ती है। और मेरा केस था डिसलेक्सिया का। डिसलेक्सिया वो भी पता चला 40 साल की उम्र में डिसलेक्सिया भी कोई होता है। जिस जगह से हमें आए हमें तो पता ही नहीं डिसलेक्सिया भी क्यों होता है, क्या होता है। हम 6 को 9 पढ़ रहे हैं, 9 को 6 पढ़ रहे हैं, तो हमारे तो स्पेलिंग गलत। और उस समय 40 साल पहले समझो स्पेलिंग गलत तो तुम्हें पिटाई टीचर से। आज तो स्पेलिंग भी गलत नहीं होते, मोबाइल है ठीक कर देता है। कितना अच्छा लगता है ना। आई विश मेरे टाइम पे भी होता, थोड़ी कम पिटाई होती मेरी। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप मज़ा करो जो भी करते हो और उसमें बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे मज़े में अगर आप इंजॉय करते हो, लोग अक्सर कहते हैं आप क्रिकेट बहुत बेहतर खेले। मैंने कहा इनको कैसे मेरे से ज़्यादा मज़ा आ सकता है। क्रिकेट मैं खेला और इनको मज़ा आता है, उसमें मेरे को मज़ा आता है कि दूसरों को मेरे खेल में मज़ा आता है। ये लिखे और दूसरों को मज़ा आए, आई थिंक वो काम में बड़ी खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच। और वीरेंद्र सहवाग जी ने बोला कि उनको उनकी फेवरेट कविता इसमें माँ पे है। पदमजीत सहरावत जी की मदर भी यहाँ है, पीछे बैठी है आंटी, उनके लिए एक ताली बजा दीजिए। और पदमजीत, ये कविता माँ की बात हो रही है तो थैंक यू डॉक्टर साहब। अब इसमें थोड़ा सस्पेंस ये भी है कि अगर आप इतिहास के पन्ने खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर कविताएं माँओं पे ही लिखी गई हैं। बाप को कोई तवज्जो है नहीं। तो पहले वीरेंद्र सहवाग की फेवरेट पोएम माँ मैं पढ़ता हूं जो मैं लिखी है, इसमें एक पोएम है पापा भी, इसके बाद मैं वो भी पढ़ूंगा। तो ये आप सबको समर्पित। अब इसमें जब मैं एक स्टैंजा खत्म करूंगा उसके बाद एक लाइन आएगी, माँ की बात हो रही है। मैं चाहूंगा आप सब उसको बोलना, ठीक है। मैं जैसे इशारा करूंगा आपको बोलना है माँ की बात हो रही है। एक बार मेरे साथ बोल के देखिए, माँ की बात हो रही है। हाँ, इसी टेम्पो में माँ की बात हो रही है, ठीक है। आइए। पूरा विश्व जिससे जन्मा उस आकार की बात हो रही है, सबसे मुकम्मल बुनियाद की बात हो रही है, जहां निस्वार्थ प्यार बसता है उस साम्राज्य की बात हो रही है, अंबिका जगदंबा की बात हो रही है, मां की बात हो रही है। उस झूठी डांट की बात हो रही है। वो डांटती है तो लगते नहीं डांट रही है। उस झूठी डांट की बात हो रही है, बालों में घूमते हाथ की बात हो रही है, जो हमेशा झुलाता है उस पालने की बात हो रही है। वाह क्या बात हो रही है, मां की बात हो रही है। मुसीबत में बच्चा दिखे, मुसीबत में बच्चा दिखे, यूसेन बोल्ट को पीछे छोड़ देगी, 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ देगी। मुसीबत में बच्चा दिखे, यूसेन बोल्ट को पीछे छोड़ देगी, 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ देगी। कोई फालतू बोला तो तोड़ देगी। एक पक्के विश्वास की बात हो रही है, प्यार अपरंपार की बात हो रही है, मां की बात हो रही है। अब ये मैं आपको इशारा करूंगा, सारे एक समय बोलना, मां की बात हो रही है। हाँ, ये लगे थोड़ा ना, निकालो पेट से आवाज निकालो। एक ठंडी छांव की बात हो रही है, एक ठंडी छांव की बात हो रही है, एक सुरक्षित नाव की बात हो रही है, जिसके बिना ना सजता शहर ना बसता गांव, उस पांव की बात हो रही है। फिर पढ़ता हूं। एक ठंडी छांव की बात हो रही है, एक सुरक्षित नाव की बात हो रही है, जिसके बिना ना सजता शहर ना बसता गांव, उस पांव की बात हो रही है। एक मिसाल की बात हो रही है, मां की बात हो रही है। खत्म नहीं है पोएम अभी, क्योंकि मां के बारे में लिखने बैठो तो कुछ भी लिख दो। मैंने फिर लिखा कि और जब बात हो ही रही है, चिंटी भी आ गए, चिंटी भी गुड इवनिंग। और जब बात हो ही रही है
तो याद रखना बात उससे हमेशा करना, तो याद रखना बात उससे हमेशा करना, जिंदगी की चकाचौंध में भूल न जाना, बस बात उससे करना और बात उसकी सुनना। वो तो बस एक ही बात समझती है, मां एक ही बात समझती है, बेटा खाना खाया कि नहीं, बस यही पूछती है। तुम भी हालचाल पूछ लेना, क्योंकि संसार के सबसे सच्चे प्यार की बात हो रही है, मां की बात हो रही है। आखिरी पंक्तियां, मतलब ही दुनिया में अपनेपन की, मतलब ही दुनिया में अपनेपन की, बदलते रंगों में से एक पक्के रंग की, एक वीरांगना एक दबंग की बात हो रही है, जिसका दर्जा भगवान से भी बड़ा है, उस पूजनीय की बात हो रही है, जिसकी बात करने की हमारी औकात ही नहीं है, उसकी बात हो रही है कि हमारी क्या औकात हम मां के बारे में बात करें। फिर पढ़ता हूं, मतलब ही दुनिया में अपनेपन की, बदलते रंगों में एक पक्के रंग की, एक वीरांगना एक दबंग की बात हो रही है, जिसका दर्जा भगवान से भी बड़ा है, उस पूजनीय की बात हो रही है, जिसकी बात करने की हमारी औकात ही नहीं है, उस काया की बात हो रही है, उस जननी पितामही माया की बात हो रही है, मां की बात हो रही है। और मां की बात जब कर रहे हैं तालियां बजाइए। मैंने फिर लिखा कि एक और पोएम है पाजी इसमें, डॉक्टर साहब। Before you proceed to the next poem, एक छोटा सा सवाल है। Everybody knows you as a motivational speaker. आपको क्या मोटिवेट करता है? What motivates you? What drives you? What inspires you? मेरे को ये मोटिवेट करता है रिचा कि मेरे को भगवान इतना जरूर दे दे कि अगर वो लोग जिनसे मैं प्यार करता हूं वो मुझसे कुछ मांगे कभी, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज मेरे पास कारण नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ फंड्स मेरे पास कारण नहीं होना चाहिए मना करने का। तो ये मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि मैं अपने बच्चे को, अपने बड़े भाई को, अपनी मां को, वो मुझे कुछ कहें तो मेरे पास असहमति का कारण फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना हो। मना करने का और कारण हो सकता है, भाई ये कारण ना हो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर बीइंग सो पापा। हाँ, तो देखिए पापाओं को क्रेडिट ना मिलता है नहीं, तो ये पापा पे मैंने स्पेशल लिखी है। प्लीज इसको जरा गौर से सुनना और बीच में जब मन करे ताली बजाना, क्योंकि आपके एक हाथ का दूसरे हाथ से एक नाता है, ताली बजाने में क्या जाता है। निखिल ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा निखिल को मैं, अच्छा एक छोटी सी बात बिफोर आई रीड दिस पोएम। पाजी ने बात की कि इसने ऐसे ही कह दिया तो मैं मान गया। देखिए एक होता है मानना, एक होता है कि अपनी टीम में ये मैसेज भी पास कर देना, और टीम भी इनकी दरअसल मुझे बहुत पहले ही बहुत प्यार करती है। तो पाजी का ना ये है कि इनकी ग्रेटनेस का मैं एक छोटा एग्जांपल दे दूं। ये नया नहीं भी बैठे होते तो मैं बताता इस बात को। कपिल देव द लेजेंड, समझ लो आप किसको व्हाट्सएप मैसेज लिख रहे हो, पहले तो वो सौभाग्य आपके पास है कि आप कपिल देव जी का व्हाट्सएप नंबर है आपके पास। आप मैसेज लिखते हो, पाजी व्हाट इज द राइट टाइम टू कॉल। 99% ऑफ पीपल will give you a time tomorrow evening. Somebody will say if you're talking in June, July. कपिल पाजी फोन कर देते पढ़ते ही। बरगद का पेड़ इसलिए बड़ा होता है, वो छाया देना जानता है। मेरे को पुरी पाजी का मैसेज आया, बेटा तेरे को क्या डेट चाहिए। वीडियो कॉल आता है पुरी भैया का, यहां बैठे फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर फ्रॉम हरियाणा, अनदर हरियाणा लेजेंड मिस्टर सरकार तलवार जी। ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आप भारत के लिए नहीं खेले। मिस्टर सरकार तलवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। पूरी भैया ने मुझे वीडियो कॉल किया, बेटा मैं वीडियो कॉल कर रहा हूं, ये देख ये डेटे मेरे सामने तेरे सामने पड़ी है, तेरे को कौन सी सूट कर रही है। तो उस तरीके से वो प्यार और मजा तभी आता है। अब आप यहां भी देखिए मंच पे कौन है चीफ गेस्ट, विश्व का सबसे बड़ा ऑलराउंडर। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। ब्रांड मेरे साथ कौन सा जुड़ा है, मैजिक मोमेंट्स। इंडिया का नंबर 1 एंकर मैं पकड़ के ले आया। ये तो मेरा भाई है, चलो इसको तो मैं नींद में भी बुला लूं आज। डॉक्टर बत्रा डज ही नीड एनी इंट्रोडक्शन, बिजनेस वर्ल्ड में अपने आप में सरताज है। तो आई फील सो ब्लेस्ड। तो मैं कह रहा हूं थैंक यू पाजी। पापा हमेशा चलने वाला सिम पापा, हमेशा चलने वाला सिम पापा, बिन कार्ड का एटीएम पापा, कर्मठ जिद्दी दबंग पापा, मेरा ताज मेरी मीनार पापा। हमेशा चलने वाला सिम पापा, बिन कार्ड का एटीएम पापा,
कर्मठ जिद्दी दबंग पापा, मेरा ताज मेरी मीनार पापा, रविवार को भी सोमवार पापा। उस बेचारे को तो रेस्ट ही नहीं है। रविवार को भी सोमवार पापा, तपता घिसता पिसता जलता शिकन का नामो निशान न पापा, तपता घिसता पिसता जलता शिकन का ना नामो निशान पापा, 9 to 5 24/7 पापा, मेरी पुलिस मेरा अस्पताल पापा। ऑफिस की टेंशन जिंदगी से युद्ध, घर में ऐसे आएंगे जैसे गौतम बुद्ध। भाई ये मम्मियां सारा खरीद ले तो जाती हैं, पापा की भी सोचो। बाहर बेचारा जंग लड़के आता है, अंदर आता बच्चा जैसे दिखता है वो ठीक हो जाता है। ऑफिस की टेंशन जिंदगी से युद्ध, घर में ऐसे आएंगे जैसे गौतम बुद्ध, कोई एक पानी का गिलास दे दे उसी में खुश हो जाता है, ये पापा है अपनी बच्चे की मुस्कान पे बिक जाता है। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कोई एक पानी का गिलास दे दे उसी में खुश हो जाता है, ये पापा है अपने बच्चे की एक मुस्कान पे बिक जाता है। फर्ज निभाना कर्ज चुकाना, अपने शौक अधूरे छोड़ बच्चों के सपने सजाता है, क्रेडिट लेने का शौक नहीं बस झोली भरता जाता है, ये मम्मी ले जाती सारा क्रेडिट। अंजलि जी, हाँ, ये मम्मी ले जाती सारा क्रेडिट, पापा डेबिट में भी ताली बजाता है। ये मम्मी ले जाती सारा क्रेडिट, पापा डेबिट में भी ताली बजाता है। जेब में फूटी कौड़ी ना हो फिर भी पॉकेट मनी का जुगाड़ तो करता है। सच बताऊं तो मम्मी की जिंदगी पापा ही आसान करता है। आज पापा को कुछ कहना है, आज पापा को अगर कुछ कहना है तो मम्मी के जरिए मत कहना, हाथ पकड़ के आई लव यू पापा जरूर कहना। Beautiful. I think most fathers can relate to it. Now coming back to Mr. Kapil Dev. पाजी आप कैसी लगी? कौन आप दोनों में से- चीफ दोनों में गेस्ट से कौन सी ज्यादा अच्छी लगी पोयम? अब तो ये कह रहा है कि दो बच्चे हैं, दोनों में से बता कौन सा ज़्यादा प्यारा है। अब माँ बाप हैं तो आप कंपैरिजन करो, वही खराब है। कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए, तो इसलिए अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उनके बिना तो हमारी जिंदगी नहीं होती। आसान नहीं है इनको एक शब्द में पिरोना, चांदी से महंगा होता है सोना। आप आसान समझते हैं कपिल देव हो ना? अच्छा, ये पैडी, आप जब क्रिकेटर थे तब भी इतनी बातें करते थे या ये बिल्कुल नहीं। नहीं, वो तलवार सर के कैप में कौन बोल सकता है? मैं बता नहीं, ये सिद्धू की तरह थे। मैं वही कहने वाला था कपिल बाजी, ये आपको वैसे ही नजर आते हैं। खेलते थे तो शायद एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी जो सीनियर प्लेयरों के सामने चुप बोलती बंद होती है, तो वो सिचुएशन थी। अपने ग्रुप में बहुत बोलते थे, हमने नहीं आवाज़ सुनी, हमने सिद्धू की पहले 4 साल आवाज़ नहीं सुनी। कोई कह सकता है इस कमरे में, कोई कह सकता है इस कमरे में कि सिद्धू नहीं बोलते थे, सिर्फ एक ही चीज़ सुनी थी, या गुड मॉर्निंग या गुड नाइट सुनी थी, उसके अलावा हमने कुछ नहीं सुना था सिद्धू जी से। आप साक्षात सिद्धू जी हैं, मतलब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं आपको मिल सकता। थैंक यू। Mr. Kapil Dev, you rightly said you enjoyed your cricket, you played for your passion, and then it worked out for the masses who were watching you, and everything else followed. What drives you right now? What is your mission in life? कुछ है mission? लाइफ आप ही ने बोल दिया है, आप ही के क्वेश्चन में आंसर है। What drive you in this life? Life itself is a big thing. अगर आपकी लाइफ है, कोविड आया था ना तो लोग बड़े रो रहे थे, बड़े तंग थे, पैसे नहीं कमाए, ये है वेरी बैड। मैं बड़ा खुश था, मैं कहा कोविड में मैं बड़ा लकी था क्योंकि मैं बच के निकल आया, और जो नहीं निकल पाए उनसे पूछो, वो ऊपर भगवान के पास पहुंच गए। तो इसलिए अगर जिंदगी है तो यही सबसे बड़ा लक है आपके पास, यही सबसे बड़ी देन है, बाकी कुछ नहीं। ये मटेरियल नहीं सामने आते, 2 पैसे नहीं कमाए कोई बात नहीं, जिंदगी तो है, कल कमा लेंगे। क्या बात है, इन अ वेरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। पदमजीत, माँ और बाप पे तो आपने अच्छी कविता कह ली। मेरी फेवरेट इसमें, जब मैं किताब पढ़ रहा था, जब मुझे कॉपी भेजी, जी, तिनका तिनका जोड़े जा, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो क्या आप वो पढ़ना चाहेंगे? आपका आदेश डॉक्टर साहब।
देखिए मैंने लिखा कि तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा। कि तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा। ऊपर बैठा वो मुंशी रख रहा तेरी हर कोशिश का हिसाब। तू बस काम से अपने काम को अपने जोड़े जा, बस जोड़े जा। चलता रहे बस रुकियो ना, चलता रहे बस रुकियो ना। राह मुड़ेगी डरियो ना, कभी कुछ कभी बहुत कुछ कहेंगे लोग, तो परवाह इनकी करियो ना। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिंदगी में जब तक जलने वाले न हो, जीने का मजा कहां आता है? मुरझाए फूल पे थोड़ी भंवरा मंडराता है। जिंदगी में जब तक जलने वाले न हो, जीने का मजा कहां आता है? मुरझाए फूल पे थोड़ी भंवरा मंडराता है। अगली बार आपसे कोई जले तो कहो आहा स्वाहा। अरे इनकी तारीफ में एक चीज और मैं बताता हूँ, इन्होंने द इम्पॉसिबल कर दिया था। वो गौतम गंभीर अभी हमारे कोच हैं, वो काफी गंभीर रहते हैं। इन्होंने उन्हें कविता सुना के हंसाया था, मैंने वो वीडियो देखा है, बहुत जोर जोर की हंसे थे। कौन सी थी, कोई खास थी? वो भी वो थी कभी बातें शादी किया नहीं। बेसिकली गौतम, आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब, उसकी फेवरेट पोएम गौतम की ये है डर पे, जो मैंने लिखी कि डरपोक है डर। उसके बाद मैं हंसने वाली सुनाऊंगा। तो जब भी हम कमेंट्री नहीं करते हैं तो गौतम आता है, बैठता है, तो वो चाय कॉफी नहीं पीता गौतम, तो गर्म पानी मंगा के बैठ जाएगा। कह रहा पैडी भाई वो डर वाली तो सुनाओ। और ये पोएम मैंने 40-50 बार गौतम को सुना रखी, और वो कभी थकता ही नहीं, मैं थक जाता हूं सुना के। तो मैंने लिखा कि डरपोक है डर, डरपोक है डर, तू बनने डर, ना इधर ना उधर, आंख में झांक के खूब खींच ताक के, तू दिखा अपना असर, घूर के देख ले ये भाग जाएगा, जितना डरेगा उतना डराएगा, एक कदम ठोस सा भरा तेरे जोश से, तू बन के बॉस सा अब लेके देख ले, देख कर तेरा दम ठोस सा तेरा कदम, खींच लेगा डर कदम चुपचाप से, क्योंकि डरपोक है डर। क्यों हलवा पूरी खिलाता है इसको? इस पे हंसता है वो, यहां हंसता है वो। मैं कहता हूं क्यों हलवा पूरी खिलाता है इसको? मेहमान नहीं शैतान है, इसको झट से मार दे, एक जीत खुद पे वार दे, आईने में देख, डर जो तेरे अंदर बैठा उसको अब तू बाहर फेंक। तो डरपोक है डर, तो बनने डर। किस बात का डरना और किससे डरना? जिंदगी की एक ही सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी। और कोई मुझे कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, तो मैं कहूंगा ऑफ कोर्स टैलेंटेड है। कोई मुझे कहेगा डॉक्टर साहब मेरे से ज्यादा मेहनती हैं, तो मैं कहूंगा अब आ जाओ। डॉक्टर साहब कितने घंटे लगाते हैं दिन में? 16 बताएंगे। मुझे 16-18 घंटे काम करने से कौन रोक सकता? खुद मैं, कोई नहीं रोक सकता मुझे। सवेरे अगर 4 बजे अलार्म बजा और मैंने दबा के सो गया उसको, तो मेरी गलती है। किताब में कोट है पाजी, किताब में कोट है। मैंने लिखा कि आज सुबह फिर अलार्म बजा, तूने फिर उसे दबा दिया। आज सुबह फिर अलार्म बजा, तूने फिर उसे दबा दिया। अबे आती किस्मत को फिर भगा दिया। किस्मत आई थी कि बेटा मेहनत कर ले, तेरा मुकद्दर चमकेगा, तूने कहा ना। आज फिर सुबह अलार्म बजा, तूने फिर उसे दबा दिया, आती किस्मत को फिर भगा दिया। ये था डॉक्टर साहब। ब्यूटीफुल। मैं आखिरी प्रश्न श्री कपिल देव जी से पूछना चाहूँगा। देखिए आपने ये 4 दशकों का प्रोफेशनल लाइफ में बीइंग द लेजेंड दैट यू आर, क्या बदला है पिछले 30-40 सालों में? जैसे आपने बोला लोग लिखते कम हैं, हिंदी में नहीं लिखते, फ़ोन आ गया, ऐसा क्या बदला और क्या नहीं बदला है? आई थिंक सबसे ज़्यादा बदला है जो स्पैन है, सो टाइम किसके पास, वो बहुत कम रह गया है। ये बहुत बदल गया है। पहले समय था, ऐसा मौका था, पेड़ के नीचे बैठे चाय पी रहे हैं, बातें हो रही हैं, वो बदल गया है। आज लोगों के पास समय नहीं है, सबसे बड़ा ये बदलाव आया है। क्या चीज़ और एंड क्या चीज़ सेम है? जो अच्छी चीज़ें जो 40 साल पहले भी थी आज भी हैं। जो इन्होंने बोला, आज भी लोग जलते हैं एक दूसरे से। आज लोग खुश नहीं होते दूसरे की कामयाबी से, आज भी जलते हैं। शायद वो नहीं बदला, लेकिन ये ज़रूर है कि बदलाव आ रहा है, लेकिन वो अच्छे के लिए आए तो बहुत अच्छा है, बुरे के लिए आए तो थोड़ा मुश्किल होगा आने वाली जनरेशन के लिए। अनुराग, I'd like to add, जो अभी सर ने बात बोली एग्जैक्टली, जो जलते हैं, एक्चुअली नेगेटिविटी इतनी है। और एक बहुत ही सुंदर सा एक छोटा सा कोट मोटिवेशनल लिखा है, मुझे बहुत ही फनी बट बहुत ही मतलब काम का लगा ये, एंड रोज हम इससे झेलते हैं। प्रसन्न रहने का एक ही उपाय, प्रसन्न रहने का एक ही उपाय,
फालतू लोगों के बारे में दिमाग पर जोर ना दिया जाए. As simple as it can get. As simple and straight. जो आप कह रहे थे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ मैं आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि क्या है. तो थ्रू आउट मैंने अपना एक्सपीरियंस ये रखा है कि अगर मैं जब समझ आई, और कुछ लोग कहते हैं समझ बहुत जल्दी आई थी, समझ बहुत देर के बाद आई, कि मैं जब एक उम्र पे पहुंचा, चाहे वो 40 का था, जब मैं कोई 45 साल के आदमी को देखता था, अपने से 10 साल बड़े या 5 साल बड़े, तो मैं उनमें ये खूबियाँ देखता था कि जब मैं इनकी एज में पहुंचूंगा, क्या मैं ऐसा बन सकता हूँ जिसके चेहरे पे नूर हो, हंसी हो. तो मेरा जिंदगी का एम ये बन गया, मैं अपने से बड़े को देखता हूँ, अगर मैं जिंदा रहा क्या मैं इस तरह खुश रह सकता हूँ, या इस तरह चिड़चिड़ वाला आदमी मेरे को नहीं बनना. तो आप अपने आप से संघर्ष है, अपने आप से लड़ाई है कि आपको कैसा बनना है. अगर अच्छा बनना है तो अच्छी चीज़ें देखो तो अच्छा बनेगा. क्योंकि आज वो कहते हैं ना, जो आपने पूछा, न्यूज़पेपर में उठाओ, नेगेटिव चीज़ें आपको 100 मिलती हैं. अगर आपको पॉजिटिव पढ़नी है तो पॉजिटिव भी मिल जाएंगी, वो पढ़ते ही नहीं है. और सबसे बड़ी बात है कि आज कोई भी, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये है, बहुत है. मैंने कहा अगर किसी की खूबी ढूंढनी है ना, पहले वो देखो भी, इनमें 10 खूबियाँ निकालो, शायद 2 गलत भी हो सकती हैं, लेकिन आप जिस आदमी को पसंद नहीं करते, सिर्फ उसकी गलतियाँ निकालते हैं, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते. क्योंकि आपने अपना माइंडसेट बना लिया है कि मुझे इस तरह का इंसान ही चाहिए. नहीं, इंसान अलग अलग तरह के हैं. क्या हम उनमें खूबी तो आप चोर में भी ढूंढ सकते हो. और मैं क्रिकेटर को कहता हूँ, क्रिकेटर से बड़ा कोई चोर नहीं है. जिसको रन चुराना आता है, उससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है. वो कहते हैं कि वो रन, भाई हम कहते हैं क्रिकेट में, उसने रन चुरा लिया, या तो वो बर्ड गर्ल है, या ये है कि वो बड़ा छात्र है, उसने दोनों बल्लों के बीच, दोनों फील्डर के बीच में रख के रन चुरा लिया. वो स्मार्टनेस है, वो चोरी नहीं है. तो इसलिए उसमें भी खूबी है. बढ़िया. मैंने किताब पढ़ी, एक इसमें एक और चीज़ है, जो एक कोट है हिंदी में, चिंता करने से हल नहीं निकलता है, चिंताग्रस्त बैठे बैठे भी फिसलता है. जी हाँ, चिंता करने से हल नहीं निकलता है, चिंताग्रस्त बैठा बैठा भी फिसलता है. क्या बात. तो इसमें बहुत सारे सामयिक थीम है, प्रोक्रेस्टिनेशन पे, फिटनेस पे, पॉजिटिविटी पे, मीठा बोलने से, कि शब्दों से दूसरे की अंतर्मन में क्या. तो एक उस पे आप क्यों नहीं, मीठा बोलने पे. मीठा बोलने मैंने लिखा कि लड़ बैठे मिलकर एक दिन चाकू, खंजर और तलवार. मुद्दा था कौन है करता सबसे ज्यादा गहरा वार. अटकम पटकम धूम धड़ाका, साबित करने पर तुले थे किसका घाव सबसे कड़ाका. देख रहे थे घमासान, दूर बैठे शब्द और जुबान. मानो कह रहे हो कि कितना भी लड़ लो और भिड़ लो कितना भी. शब्द जुबान कह रहे हैं चाकू खंजर तलवार को, कि कितना भी लड़ लो और भिड़ लो कितना भी, दिए हुए घाव तुम्हारे मरहम पट्टी से भर जाते हैं. हम जब छोड़ते हैं तीर तो रिश्ते चीर हो जाते हैं. पगलों, खत्म नहीं हुए अभी. चाकू खंजर तलवार को शब्द और जुबान कह रहे हैं, पगलों क्यों लड़ते हो ऐसी जंग जो जीत ही ना पाओगे. जो नुकसान हम करते हैं खाक तुम कर पाओगे. क्या बात है. तो इसमें एक बहुत सारी है, किताब खरीदनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी. बट इसमें एक और जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी मदर का देहांत हो गया कुछ 85 दिन पहले. तो जब मैं 12 साल का था, मैं और पदमजीत एक ही स्कूल में, मैं भी हरियाणा से हूँ. आप मेरे सीनियर थे भाई, बताओ. हाँ, वो तो सीनियर ही हूँ मैं. तो थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. बट मैं जब 10 या 11 साल का था, मेरी बड़ी बहन है, तो मेरी मदर बोलती थी भगवान को शुक्रिया करो कि आपकी आंखें ठीक, कान ठीक है. तो मैं सोचता था मेरी माँ, अपनी बड़ी बहन, उनका नाम सुकीर्ति है, बट उनका निकनेम बिट्टू है. तो बोलता बिट्टू दीदी ये मम्मी कैसी बातें करती है कि भगवान को थैंक यू बोलो. तो लेटर इन लाइफ आई रियलाइज दैट पॉसिबली दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट शी टॉट अस इज ग्रैटिट्यूड. तो उन्होंने ग्रैटिट्यूड पे एक कविता लिखी है, शुक्रिया. जी शुक्रिया डॉक्टर साहब. मैंने लिखा कि छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए. बिकॉज आई थिंक वी क्रिप अ लॉट इन लाइफ.
If we look around and see what others are coping with, we'll find ourselves very fortunate. मतलब मेरा मानना है, if you sleep well and if you wake up healthy, you are already a very successful person. Everything else that you attain in life is mere bonus. छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए, जितना है पास उसका मजा लीजिए, अंदाज दिखाइए, नजरअंदाज करने की कला अपनाइए, जिंदगी की खूबसूरती में एक पौधा अपना भी लगाइए। और जब ताली बजाने का मन करे तो प्लीज खुल के बजाओ, रुकने का नहीं। कहीं कोई भूखा सोया, ये कोरोना में मैंने लिखा था। ये 2 पोएम ऐसी थी जो मैंने बहुत पहले लिखी, और जैसे निखिल ने कहा, बाकी की पोएम निखिल ये 3-4 महीने में सारी बनी। कहीं कोई भूखा सोया और तू खुद में खोया है, कहीं कोई भूखा सोया है और तू खुद में खोया है, किसी ने आस में रात काटी है, तू घर बैठने पे रोया है। आप क्रिप करते थे, हम घर में बंद हो गए। कहीं कोई भूखा सोया है और तू खुद में खोया है, किसी ने आस में रात काटी है और तू घर बैठने पे रोया है। घर में बंद हैं हम, फिर भी ठीक ठाक हैं हम, देखने को टीवी है, खाने को रोटी है, फिर भी शिकायत करते हैं हम। मजा तब है जब आपके आसपास कोई दिहाड़ी वाला मजदूर भूखा सोए ना, वो गली का कुत्ता भूखा सोए ना, उस पौधे में पानी न हो ऐसा होए ना। उन लोगों की मदद करें जिन्हें जरूरत है। आप भाग्यशाली हैं, खाना खिलाएं, किसी उदास चेहरे पर एक मुस्कान लाएं। आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है, आपकी जेब गहरी हो इसकी भी जरूरत नहीं है। एक ऐसा दिल चाहिए जो धड़कता हो, एक ऐसा हृदय जो परवाह करता हो, किसी राह से कांटे हटाकर जो फूल रख सकता हो। तो मुस्कुराइए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। वील एंड बाय आस्किंग मिस्टर कपिल देव टू, ये सेल्फ बिलीफ कहाँ से आता है? इन्होंने एक सेल्फ लव, आप में ये, अब तो ऑफकोर्स बहुत लंबी जर्नी हो गई, बट जब आप 18-19 साल 20 साल के थे तो ये, तब तो ये टर्म सेल्फ लव वगैरह तो थी नहीं, ये तो अभी नए नए आए हैं 10-15 साल में। बट सेल्फ बिलीफ कहाँ से आता था कि मैं कर लूँगा? I don't know. I think maybe surrounding where you're born and brought up, that culture does help you with that. And uske baad you work on that. I think realization who you are is the most important thing. आप कौन हो? हम 50-50 साल के भी आदमी हो जाते हैं, पता नहीं चलता हम कौन हैं। दूसरे को इम्प्रेस करना शुरू कर देते हैं, खुद को कर नहीं पाते। तो इसलिए जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेते हो, उस दिन शायद कामयाबी आपके कदम चूमती है, क्योंकि आपको फिर डर खत्म हो जाता है। जब मैंने क्रिकेट शुरू की तो पता था नहीं इंग्लिश आती तो नहीं आती, कोई ज़बरदस्ती थोड़ा है इंग्लिश आना। क्रिकेट तो आती है ना, क्रिकेट तो आती है ना। तो शायद इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब क्रिकेट शुरू की तो हमारे क्रिकेट में एक था, इसको इंग्लिश आती है। तो उन्होंने बोला कि कपिल को तो कैप्टन नहीं बना सकते, इसको इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं अक्सर बार बार कहता हूँ, तो मैंने उस समय बोला था, जब मैंने अपने आप को पहचाना, उस समय बोला था कि यार कोई ऑक्सफोर्ड से ले आओ जो इंग्लिश बोले, वो इंग्लिश बोले, मैं क्रिकेट खेलूँ। आई थिंक सेल्फ बिलीव एंड सेल्फ रियलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, कि आप कौन हो। और लोग मर जाते हैं तब भी नहीं पता चलता आप कौन हो। ये सबसे बड़ी शायद है। जिस फैमिली से मैं आया या जिस सराउंडिंग में मैं बड़ा हुआ, उसमें यही था कि लड़ाई हो गई है तो बाप भी बोल देता था, मार के आया तो झड़ ले, रो के आया तो वापस चला जा। ये सेल्फ बिलीव है। इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हो कि क्या सिखाया है, लेकिन सेल्फ बिलीव है कि फिर डरना नहीं। और जब डर निकल जाता है तो सेल्फ बिलीव बढ़ जाता है। और जिसके अंदर डर रहता है वो सेल्फ बिलीव कभी भी नहीं ला पाता। वही क्रिकेट के ऊपर है कि आप परफॉर्मेंस को देख रहे हो, डर रहे हो कि परफॉर्मेंस होगी कि नहीं होगी कि नहीं, तो फिर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। न डर हो के खेलोगे तो आप भी मजा पाओगे, देखने वाले भी मजा पाएंगे। लास्ट थिंग, पदमजीत के बारे में कोई ऐसी बात बताइए जो अभी तक कह नहीं, ना निखिल ने बोली है ना रिचा ने बोली है, कोई अपना एक वाक्य पदमजीत के। सबसे बड़ा, ज़्यादा हमें बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लोग किताब नहीं पढ़ेंगे। हाँ भाई, कोई जिसके लिए बुलाया है, अगर आप यहाँ सब कुछ पढ़ डालेंगे तो किताब कौन खरीदेगा।
छोटी छोटी कहानियाँ होनी चाहिए। आई थिंक पदम के लिए सिर्फ एक ही कहूँगा कि ये देन है इनकी जो इनके पास है कि आप महफिल सजा सकते हो, और जो इंसान महफिल सजा सकता है इस काइंड। पता नहीं, मेरी माँ कहती थी कि तुम्हारे को देख के अगर कोई खुश हो जाता है, स्माइल आ जाती है, तो ये भगवान की देन है। और ये कमरे में बैठे और 4 लोगों को इकट्ठा करके हंसा दे, तो ये देन है इस भगवान की। ब्यूटीफुल। एक चीज़, इनकी कविताएं आपने बहुत सुन ली है, इनकी मोटिवेशनल टॉक बहुत सुन ली है, इनके जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसके भी लोग कायल हैं, क्योंकि कपिल भाई जी ने कहा ये महफिल सजा देते हैं। तो कुछ अगर एंटरटेन करना हो। हाँ, गाना तो फिलहाल नहीं गाऊंगा, तो हाँ ह्यूमर। हाँ नहीं, ह्यूमर का देखिए, जिस स्टेट से हम लोग आते हैं वहाँ 2 चीज़ें बड़ी बुलंद हैं। एक तो हमारी जो भाषा है हरियाणवी, तो एक बार क्या हुआ कि हर भाषा का अपना अपना महत्व है, अपना लहजा है, अपना चाम है। चिंटी भैया ठीक कह रहा हूँ? संदीप चौधरी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप रोज टीवी पे इनको देखते होंगे, इंडिया के लीडिंग न्यूज एंकर्स में से एक। तो अगर किताब में मैंने वो लिखा है कि लखनऊ में एक बार क्या हुआ कि 2 औरतें लड़ रही थी। आप मीठा बोलने में डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना, तो ज्यादातर जिंदगी में ये नहीं होता आप क्या कहते हो, आप कैसे कहते हो, कैसे कहते हो। पूरी बहन ने मुझे फोन किया था, तो वो वीडियो कॉल में सब समझ आ गया था कि वेदर यू वेलकम और नॉट, समझ में आया था। 2 औरतें लड़ रही थी आपस में, एक दूसरे को पता क्या कहती है, वो किताब में भी है, कहती है आप मुझसे फालतू बहस ना करें वरना मेरे पैर की जूती आपके सर की जीनत बन जाएगी। अब यही हमारे हरियाणवी में लड़ लो। तो भाषा में फर्क। हरियाणवी भाषा का चाम क्या है, रौब, चौधर है भाई। तो एक बार लखनऊ से एक साहब आ गए, उन्होंने कहा माफ कीजिए थोड़ी तकलीफ देनी थी, मेरे जैसे को मिल गया। क्या कहा लखनऊ वाले ने? माफ कीजिए आपको थोड़ी तकलीफ देनी थी। मैं बोला देख देख। एक बार हरियाणा के एक स्कूल में एजुकेशन इंस्पेक्टर साहब गए। उन्होंने सोचा बच्चों की भाई ग्रांट मिल जाएगी स्कूल की, आसान सवाल पूछ लो इनता है। बोला आसान सवाल पूछ लूंगा, शिव धनुष किसने तोड़ा? ये जवाब दे देंगे, मैं इनकी ग्रांट पास कर दूंगा, मेरा भी काम खत्म, घर चलो। वो क्लास में गए, बोले हाँ बेटे, सबसे पीछे वाला छोरा बोले नमस्ते मास्टर जी, दंडवत प्रणाम। बोले बेटे शिष्टाचार तो बहुत बड़ा है बेटे, बच्चे बहुत अच्छे मेरे बच्चे शिव धनुष किसने तोड़ा? बोले मास्टर जी मैं तो 3 दिन छुट्टी पे था, मन नहीं तोड़ा। बोले बेटा अगर कुछ नहीं कहीं कुछ की में ना हो इनका। बोले भाई कहाँ है थारा क्लास टीचर? बोला जी बाहर धूप में बैठे, बुला के ले आओ। मास्टर जी आए शर्मा जी। बोला शर्मा जी बच्चे नहीं पता शिव धनुष किसने तोड़ा? बोला किसको नहीं पता जी? बोला उसको। बोला जी एक बात मैं आपको बता दूं, वैसे ही शरारती है लेकिन झूठ नहीं बोलता। इन्हें कह दी नहीं तोड़ा तो नहीं तोड़ा। वो बोला भाई बेटा अगर इनकी कुछ नहीं। बोला प्रिंसिपल थोड़े जाना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल के बाद चले गए। अब मैं चुटकुले से विराम लेता हूं, यहां पे वापस आऊंगा। हरियाणा में क्या है, और खासकर पुलिस में, कि अगर आप किसी दस्ते के साथ कहीं गए हैं तो अगर एसपी साहब ने कुछ खाया है तो नीचे वाले वो चीज नहीं खाते कि भाई ये तो साहब ने खाई, हम इसके नीचे वाले खाएंगे, ये रिस्पेक्ट है। तो एक बार एक गांव में एक पुलिस का दस्ता गया, तो सरपंच ने पूछ लिया एसपी को, हाँ भाई क्या लोगे ये हो गए। वो गए नीचे सिपाही के पास, बोले जी क्या खाओगे? बोला पहले नू बताओ साहब के खा रहे हैं। बोला साहब तो दलिया खा रहे हैं। बोला जी साहब भी दलिया खा रहे हैं, मारी तो खड़ भेज दो। वो जो चारा होता ना भैंस को खिलाने का, उसको खड़ कहते हैं हरियाणा में। बोला जी साहब भी दलिया खा रहे हैं, मारी खड़ भेज दो। वापस आता हूं यहीं पे, क्योंकि सबसे पहली चीज हरियाणा में पूछते हैं कि जी क्या लोगे? नाश्ता मंगा दूं तो प्रिंसिपल के दरवाजे पे दस्तक दी। प्रिंसिपल साहब आओ जी इंस्पेक्टर साहब अब नाश्ता ले आओ। क्या लोगे? क्या बोला कुछ नहीं लूंगा, ताड़ा ले आओ। लग गया सब। बोले क्या हो गया? वो बड़े चिंतित। बोला जी न्यू हो गया, बड़ का नो नहीं पता शिव धनुष किसने तोड़ा। बोला विचार करने लायक बात होगी ये तो भाई, किसे नहीं पता? बोला जी किसे नहीं पता शिव धनुष किसने तोड़ा? बोला लेकिन मैं आपके लिए गुड न्यूज दे दूं, इससे पहले कि आपके लिए नाश्ता है गरम गरम। बोला जी क्या? मार दो रहे सबसे बढ़िया कारपेंटर, टूट गया टाट गया नया बनवा देंगे। You know, I've grown up in old Gurgaon where we went to a school. Then I studied in Bhiwani, and
then I have, I'm originally from Gurgaon, so I relate to it, though my kids make fun of me that Papa is from Haryana, but डॉक्टर साहब मुद्दा क्या है यहाँ पे? मुद्दा ये है कि ह्यूमर, जैसा पाजी ने कहा, ह्यूमर इज द इजीएस्ट एंड द मोस्ट फ्रीली अवेलेबल एंटी डिप्रेसेंट. आप जिंदगी में रोज आपको 1 घंटा अपना लेजर टाइम निकालना चाहिए, चाहे आप पिक्चर देखिए, चाहे आप मूवी देखिए, आप कुछ भी करिए, दोस्तों के साथ बैठ के. मेरा मानना है कि दोस्तों के साथ बैठ के जब आप दिल खोल देते हैं तो सबसे बढ़िया टाइम तो आपका वो है, क्योंकि आप सोचते ज्यादा नहीं, आप इंजॉय करते हैं. तो वहां पे मैंने डॉक्टर साहब कोट लिखा था, इसमें नहीं है, वो उड़ान 2 में आएगा. देखा, ऐसे कहते हैं पब्लिसिटी. तो मैंने लिखा, डॉक्टर साहब, मैंने लिखा कि देखिए जिंदगी आपके इतने मजे लेते हैं, कभी जिंदगी के मजे लेने चाहिए. तो मैंने लिखा, अगर दोस्तों के साथ बैठ के दिल खोल दिया होता, अगर दोस्तों के साथ बैठ के दिल खोल दिया होता तो अस्पताल में जाकर औजारों से दिल न खुलवा रहे होते. क्या बात है. ऑन दिस नोट आई वुड से मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जितने भी बहुत प्यार से चीजें कही गई हैं, एक्सरसाइज पे, मेडिटेशन पे, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करें, हम जो भी करना है आज करें, तो ऐसी चीजें जिससे हम सब जूझते हैं, या हमारे इट डजंट मैटर हाउ ओल्ड यू आर, यू फेस दोज इश्यूज. सो सब एक मेरे जहन में भी 2 लाइनर आया, एक 2 लाइनर. अगर आपको मेरे प्रति आज प्यार दिखाना है, निकलिए अभी भी बनाया मेरे दोस्त, अगर आपको मेरे प्रति प्यार दिखाना है तो दिल अगर कहे 1 तो 2 किताबें खरीद के दिखाना है. क्या बात है. On this note, please give Mr. Padamjeet Sehrawat a big round of applause. Give our chief guest, Mr. Kapil Dev, a big round of applause. Thank you so much. Before we conclude, सबसे सवाल पूछ लिए. पदमजीत, आपने अभी तक नहीं बताया आपकी लाइफ का, करियर का मैजिक मोमेंट क्या है? आपके ब्रांड का नाम क्या है? मैजिक मोमेंट नहीं है, मोमेंट्स है. नॉट वन. तो वही फर्क है रिचा. एक चुनने पे बैठूंगा, जैसा कपिल पाज ने कहा कि इतने सारे बच्चे हैं. अब मेरे घर में मतलब आप देखेंगे कि मेरी हर बहन के 2 बच्चे, मेरे भाई साहब के 3, मेरे 2. तो मैं अगर अपने पहले बच्चे का नाम लूं गोदी में लेके, जिसमें सबसे ज्यादा खुशी आपको मिलती है कि भाई आप पिताजी बने, तो वो गलत होगा. क्योंकि खुशी तो लीची जब पैदा हुई थी मुझे उतनी हुई थी. तो मैं फंस गया, क्योंकि जैसा कि कपिल पाजी ने वो आंसर पहले ही दे दिया था. तो मैं कहूंगा ये बच्चे जो हमारे घर के हैं सारे, वो मेरे मैजिक मोमेंट्स हैं. Beautiful. I think we'll do the official book launch. We'll also like to get 2 more, personalities on the stage to be able to launch the book. Padamji, I would. Can we get the release? Yes, I'm sure Prashant. I will request Rahul, darling, and Chakrapani sir to kindly come up on stage, and along with Kapil Paji, we'll do the book launch now. जैसे मैंने पहले कहा कि शब्द में आपको पिराऊं, ये मैं गुस्ताखी भी कर नहीं सकता. तो मेरी बस ये गुजारिश होगी, जो आज तक आपने जो प्यार मुझे दिया है, बस वो मुझे मिलता रहे. चरण स्पर्श एक बार गले लगा लो. हरियाणवी में कहते हैं ना कि मैंने प्यार भी दे दिया तेरे को. ऐसे ही बोलते हैं हरियाणवी में, प्यार प्यूर नहीं देते, उधर थप्पड़ देते हैं. चल शाबाश, जीता रहे तू. पर अभी इस किताब में कुछ बच गया है. ये तो नहीं खरीदने वाले, ये पक्का नहीं खरीदने वाले. सब कुछ तो बता दिया. एक आधा टॉपिक बताता, कुछ बचा ही नहीं है. बट बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत मुबारक कि आपको आप इस किताब के थ्रू दूसरों को
इंकरेज करें, क्योंकि लिखने वाले कम हो गए आजकल। तो इसलिए अगर कुछ लोग पढ़ सकते हैं और अपने अंदर का टैलेंट ला सकते हैं तो उस खुशी उस बात की होगी कि आपको देखकर अगर कल और 4 किताबें ऐसी लिखी जाएं। Paji, a vote of thanks, of course, to the legend himself, to all of you, Dr. Batra and team, thank you so much. My publishers, Bigfoot, boys, love you, well done. And of course, my family, Bade Bhaiya, Pranam, Mummy, and all dear friends, without you, I'm incomplete. Thank you so much. And Nikhil Naz, kahan hai mera bhai? Love you, baby. रुक जाना